अच्छा देखो यहाँ पे वी हैव अ क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl and magnesium chloride MgCl2 ना. sodium chloride NaCl and magnesium chloride MgCl2 both are ionic compound. Describe the arrangement of the ions and the type of attractive forces between the ions in solid magnesium chloride. So, what is the arrangement of ions? Means the structure of ionic compound in magnesium chloride. The structure of ionic compound is l- lattice ionic lattice. Now, the arrangement is giant ionic lattice. The arrangement here is giant ionic lattice. The arrangement is giant ionic lattice. Okay. Ionic compound and uh, macromolecule has a giant structure na. Ionic compound and macromolecule has a giant structure, whereas simple molecules has simple structure na. So yeah, macromolecule and simple molecules are the two types of covalent compounds. Okay, the type of forces between the two ions as Na is plus, sorry, the Mg is +2 and Cl is minus. So the force between the charges is known as electrostatic force ना. MgCl2 है तो Mg+2 एंड Cl माइनस में फोर्सेस होंगी, तो ये चार्जेस इन बिटवीन जो फोर्सेस होती हैं उनको हम हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बोलते हैं. ओके. अच्छा फिर वो बोला एक्सप्लेन व्हाई द सॉलिड सोडियम क्लोराइड डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट एक्वस मैग्नीशियम क्लोराइड डज कंडक्ट. अच्छा देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि सॉलिड मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता ना. देखो अब होता क्या है, मैंने आप लोगों को कल ये बात को बताई थी कि हम जब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं ना, देखो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आइंस का ये फ्लो चाहिए होता है. अच्छा इलेक्ट्रिसिटी दो तरीकों से ये कंडक्ट होती है. एक होती है थ्रू इलेक्ट्रॉन्स और एक होती है थ्रू आइंस यानी चार्जेस. अगर थ्रो आइंस या चार्जेस हो रही है ना तो आइंस का ये फ्लो चाहिए होता है. सॉलिड में आइंस फ्लो नहीं करते, सॉलिड में आइंस अपनी जगह पर रहते हैं. आइंस करते हैं फ्लो एक्वस फॉर्म में या यानी मोल्डर फॉर्म. मोल्डर फॉर्म क्या होती है? वो लिक्विड फॉर्म. सी जी. इन सॉलिड आइंस कैन नॉट मूव बट इन एक्वस इन एक्वस दे कैन मूव. लेकिन एक्वस में वो मूव कर सकते हैं. ठीक है. स्टेट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड chloride ion. Basically, magnesium has a configuration of 282, बट अगर ये आयन होगा तो ये अपना, क्योंकि एज मैग्नीशियम इज अ मेटल सो इट विल लूज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना. एज मैग्नीशियम इज अ मेटल सो इट विल लूज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो इट विल बिकम 282 ना. it will lose a last two the electrons of the last two shell. There are two electrons in the two last shell na, so it will lose these two electrons. So, सही है. तो magnesium ion will become, in ionic state magnesium will become 2 and 8. And also chloride, chlorine has a configuration of 2, 8 and 7. But in ionic state, it will gain one electron and become 2, 8 and 8. Huh? Chlorine will complete its octet from 7 to 8 and it will become 2, 8 and 8. Okay. These are the configuration of magnesium and chlorine. Copper 2 salt is an ionic compound. Explain why the copper 2 sulfate doesn't conduct electricity, but aqueous copper sulfate does. वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जो इससे पहले हमने लिखा है ना. इन सॉलिड्स, इन सॉलिड आयंस कैन नॉट मूव
but but in aqueous they can, बट इन aqueous वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, फिर हमारे पास क्वेश्चन है, सोडियम ऑक्साइड Na2O is an ionic compound. State the electronic configuration for each of the ions in sodium oxide. सेम चीज होनी है, ठीक है। सोडियम हैज अ configuration of 281 and oxygen has a configuration of 2 and 6. So sodium will gain, also sodium will lose one electron to become 2 and 8, and oxygen will gain 2 electron. Na? So that's why the formula of sodium oxide is Na2, because oxygen is gaining 2 electron and sodium is losing 1 electron. Na? So जब ऑक्सीजन 2 गेन कर रहा है और सोडियम 1 लूज कर रहा है, सो टू सोडियम की जरूरत पड़ेगी टू बैलेंस द कंपाउंड, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 और 8 हो जाएंगे, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ द मोल्टेन ऑक्साइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन फॉर्म। Ions can move to conduct electricity. ओके, आयंस जो है वो मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। Calcium chloride is an ionic compound. State the electronic configuration for each of the ions in the calcium chloride. अब क्या है, वही वो कन्फिगरेशन लिखेंगे, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये कंसेक्यूटिव आ गया, ठीक है। कैल्शियम आयन, मेरे पास कैल्शियम की वो कन्फिगरेशन क्या होती है, 2882, ठीक है। और क्लोराइड की क्या होती है, 28 और 7। अब देखो, जो कैल्शियम है वो दो लूज करेगा, ये मेटल है ना, वैलेंस शेल पूरा वो खत्म कर देता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। क्या करेगा, ये पूरा खत्म कर देगा, ठीक है। आखिरी के दो जो वैलेंस शेल है वो पूरा क्या करेगा, खत्म कर देगा, ठीक है। क्लोरीन क्या करेगा, इसको कंप्लीट करके 8 कर लेगा। लेकिन अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्या है कि कैल्शियम 2 लूज कर रहा है, क्लोरीन 1 गेन कर रहा है, तो कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन के लिए, दो कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन के लिए 2 क्लोरीन के आयन चाहिए होंगे, इसी वजह से फॉर्मूला बनता है CaCl पे। कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, Cl पे ये -1 चार्ज होता है, ठीक है। तो हो गया 2 8 8, और कैल्शियम की भी क्या होती है, 2 8 और 8, ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड HF has a simple molecular structure. It is soluble in water. Magnesium reacts with the fluorine to make the ionic compound magnesium fluoride. Predict the two physical properties of magnesium fluoride. तो क्या बोला है कि magnesium fluoride is a simple molecular structure ना, sorry, hydrogen fluoride is a simple molecular structure, has a it's soluble in water, but उसने ये पूछा किस पे। अच्छा देखो, यहाँ पे उसने क्वेश्चन चेंज कर दिया ना, आगे आते आते, मैग्नीशियम रिएक्ट विद फ्लोरीन टू मेक आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम फ्लोराइड। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन फ्लोराइड कोवेलेंट है, बट मैग्नीशियम फ्लोराइड क्या है, आयनिक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड कोवेलेंट है, बट मैग्नीशियम फ्लोराइड आयनिक है। तो उसने पूछे प्रेडिक्ट द टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम फ्लोराइड। उसने मैग्नीशियम फ्लोराइड की प्रॉपर्टीज मुझसे वो पूछी है, हाइड्रोजन फ्लोराइड की नहीं वो पूछी है। उसने ऊपर वो बात ऐसे करता है कि हमें फील होता है कि शायद वो हाइड्रोजन फ्लोराइड के बारे में पूछा, और नहीं, उसने यहाँ पे साफ बोल दिया है, प्रेडिक्ट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम फ्लोराइड। अब क्योंकि मैग्नीशियम फ्लोराइड है क्या है, आयनिक कंपाउंड है, तो क्या होगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट,
ठीक है। सेकंड क्या होगा, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसकी तो प्रॉपर्टीज कल जो मैंने आपको लिखवाई थी तीन, उसमें से कोई दो प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। जी। अब ये क्वेश्चन काफी आता है। Explain in terms of electrons how a magnesium atom react with a fluorine molecule F2 to make the magnesium ion and the two fluoride ions। इसने कहा कि इन टर्म्स ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे बताओ कि किस तरीके से जो मैग्नीशियम एटम है वो रिएक्ट करता है फ्लोरीन के टू फ्लोरीन के मॉलिक्यूल से और मैग्नीशियम फ्लोराइड को बनाता है, ठीक है। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें आपने बताना क्या है। मैग्नीशियम, देखो ये है ना मैग्नीशियम फ्लोराइड, इस तरीके से ना MgF2 बन रहा है ना। अच्छा, अभी ये कुछ स्टूडेंट को वो मसला होता है कि सर ये MgF2 हमें कैसे पता। देखो यहाँ पे आपने Mg लिखा और F लिखा ठीक है। इसका +1 चार्ज है, इसका -1 चार्ज है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ लिया और इसको यहाँ लिया, यानी कि जो Mg है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो और जो फ्लोरीन है उसको 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आपका कंपाउंड बन जाता है MgF2, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और दो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और दो फ्लोरीन 1 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। मैग्नीशियम will lose two electrons while two fluorine will gain will gain two 1 electron each। See, magnesium will lose two electron while two fluorine will gain 1 electron each। अच्छा देखो, फिर उसके बाद बोल रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S द सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है ना कि वो किसकी बात कर रहा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात कर रहा है। हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है H2S, और क्या सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी कोवेलेंट है ना। और वाटर में वो सॉल्युबल, मैंने बताया था ना कि कुछ सॉल्युबल होते हैं कुछ सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो ये सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, ठीक है। तो बोले मैं, अब उसके बाद वो क्वेश्चन ही चेंज कर रहा है। मैग्नीशियम रिएक्ट विद द सल्फर टू मेक द आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम सल्फाइड, टेक द टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। जब इसका क्या होगा, कोई मैग्नीशियम सल्फाइड में बोल दिया कि भाई आयनिक कंपाउंड है, ये खाली MgS होगा वो होता है, और ये MgS किस तरीके से होता है, Mg+2 चार्जेस सल्फाइड -2 चार्ज, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टू यहाँ पे टू यहाँ पे। अब ये Mg2S2 तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा MgS। सही। नॉर्मली क्या होता है, जब चार्जेस बैलेंस आ रहे हो तो हम मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना, ये 2 1 2 1, तो ये MgS बन जाएगा, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, वही हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और अब मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी ना, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, इससे पहले भी इसी टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाउ मैग्नीशियम एटम रिएक्ट विद द सल्फर एटम टू मेक द मैग्नीशियम आयन एंड सल्फाइड आयन। वो बोले कि मैग्नीशियम आयन और सल्फाइड आयन मेरा क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फाइड बना रहे हैं, तो ये आयंस बनते कैसे हैं, तो मुझे ये बात यहाँ को बतानी है, तो कैसे। मैग्नीशियम एटम will lose two electrons but while each sulfur atom will gain two uh, two गलती से इस वाला लिखते हैं electron to become S-2।
Mg+2 बन रहा है और ये S-2 बन रहा है। ओके। अच्छा देखो, उसके बाद वो बोल रहा है कि द टू आइसोटोप्स ऑफ सल्फर आर। अभी सल्फर के दो आइसोटोप दिए हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में जस्ट जो डिफरेंस है ना, वो इसके मास नंबर का है। इसमें क्या है, न्यूट्रॉन चेंज है। ठीक है, एक का मास नंबर जो है वो 32 है, एक का 33 है। अब वो बोला है सल्फर रिएक्ट्स विद सल्फर रिएक्ट्स विद पोटेशियम टू फॉर्म पोटेशियम सल्फाइड। राइट द फॉर्मूला एंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्गेशन ऑफ द पॉजिटिव आयन एंड द नेगेटिव आयन इन अ पोटेशियम सल्फाइड। अब पॉजिटिव आयन कौन सा है, नेगेटिव आयन कौन सा है, पोटेशियम सल्फाइड। देखो पोटेशियम सल्फाइड मेरे पोटेशियम होता है कि पोटेशियम पे चार्ज है +1 का, सल्फर पे चार्ज होता है -2 का ना, तो क्या होता है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये K2S। ठीक, K2S होता है फॉर्मूला, और K मेरा ये पॉजिटिव आयन। ठीक है। जो जो पॉजिटिव आयन है उसका फॉर्मूला है +1। और इलेक्ट्रॉनिक को कन्फिग्रेशन क्या होती है, जो मेरे पास ये पोटेशियम है ना, वो उसी ग्रुप में उसी सॉरी ये पीरियड में होता है जिसमें कैल्शियम, यानी फोर्थ पीरियड होता है इसका ना। तो कन्फिग्रेशन क्या होगी, 2 8 और 8। वैसे पोटेशियम की वो कन्फिग्रेशन होती है 2 8 8 1 ना। क्योंकि शेल जो होता है फोर्थ होता है, ग्रुप फर्स्ट होता है। ठीक है। और जब ये आयन बनेगा तो ये हो जाएगी, एक लूज कर देगा। और जो मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है सल्फर का, वो है वो -2। वैसे सल्फर की वो कन्फिग्रेशन होती है 2 8 और 6, लेकिन ये दो गेन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी, 2 8 और 8 से, इस तरीके से। अच्छा देखो, अभी एक मेरे पास क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। मेरे पास सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है। एंड द देयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन एज शोन बिलो। द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन एज शोन बिलो। ये वाला क्वेश्चन अभी भी आया है, तो रिसेंट डेज में आया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 801। सोडियम, देख यहाँ पे देख लो, सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 801। ठीक है। एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्लोरीन इज -101, यानी क्लोरीन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम है। क्लोरीन का कितना है, -101। तो सोडियम क्लोराइड का क्लोरीन से बहुत ज्यादा है। NaCl का है 801 डिग्री सेल्सियस, और Cl2 का है -101। कितना है, -101 डिग्री सेल्सियस। सही है। Now will I explain in terms of structure and bonding the difference between the melting point of these two substances? अभी 4 मार्क है। ठीक है। आपने पूरा एक्सप्लेन करना है कि भाई इसकी वो बॉन्डिंग क्या है और स्ट्रक्चर क्या है, उसकी बेसिस पे बताना है कि भाई इनके बॉइलिंग पॉइंट में इतना बड़ा जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है। ठीक है। जी। अच्छा अब देखो क्या है, NaCl का स्ट्रक्चर क्या है। NaCl has a joint आयनिक स्ट्रक्चर। NaCl का स्ट्रक्चर है जॉइंट आयनिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। जी। एंड इट हैज strong electrostatic forces। उसकी फोर्सेस क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, which needs which needs a lot of energy to overcome it। ठीक है। अब क्या है, क्योंकि दोबारा से पूरा बताया तो कैसे लिखा है, NaCl has a giant ionic structure and it has strong electrostatic forces which needs a lot of energy to overcome it ना। ये किसका है, NaCl का। Cl2 क्या है, Cl2 is a simple कोवेलेंट कंपाउंड। अब अच्छा, ये कोवेलेंट कंपाउंड से बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर दोनों शो है। ठीक है।
जी सर। which has weak intermolecular forces. IMF शॉर्टकट लिख दे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस which has weak inter, यानी कि जो अट्रैक्टिव वो फोर्सेस है उनको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बोलते हैं, which has weak intermolecular forces which needs which needs which will be easier टू ओवरकम, वो बहुत आसानी से ओवरकम हो जाती है, तो इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत लो है, किसका, Cl2 का। और NaCl का क्यों है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, तो उनको ओवरकम करना मुश्किल होता है, ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अब बोल रहा है वाई द मोल्टन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बट सॉलिड सोडियम क्लोराइड डजंट, वही है कि उसमें आयंस नहीं होते सॉलिड में, मोल्टन में आयंस है, ठीक है, इससे पहले कर चुके हैं। अच्छा बोला है ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ द सोडियम ऑफ सोडियम क्लोराइड शोइंग ऑल द इलेक्ट्रॉन शेल्स। अच्छा उस डॉट एंड क्रॉस करना है तो सारे इलेक्ट्रॉन शेल्स में बोले शो करो ना, तो ये मैंने बनाया है नहीं, ठीक है, फर्स्ट शेल और सेकंड शेल, सिर्फ दो ही शेल होंगे ना हैने में, क्योंकि वो जो लास्ट शेल है वो तो लूज कर देगा, और सीएल इस तरीके से होगा, सीएल में तीन शेल्स होंगे, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल, ठीक है। अब Na के फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये Na किस तरीके से होगा 2 8, और इसका होगा 2 8 7, ठीक है। Na के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। Cl की भी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड शेल में भी 8 होंगे, लेकिन इसके थर्ड शेल में भी 8 होंगे, सही। और एक यूं करके शो करेंगे, जो एक इलेक्ट्रॉन होगा ना वो यूं शो करेंगे एक पेयर, इस एक पेयर का शो करने का मतलब है कि एक इसने Na से वो गेन किया है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में करके, क्योंकि एक इसने लूज किया तो ये +1 है, और इसने एक गेन किया तो ये क्या है, -1 है। तो इस तरीके से हम इसका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे NaCl का, ठीक है जी। जी। हम ये कोवलेंट कंपाउंड्स का कर रहे हैं। नहीं नहीं, अभी ये हाई नहीं कहना, ये थोड़ा सा करें, इसके बाद देन वी विल डू कोवलेंट कंपाउंड्स का, दो तीन क्वेश्चन रहते हैं, फिर उसके बाद कोवलेंट कंपाउंड्स करेंगे। जी। इट्स ऑलमोस्ट डन, आयनिक कंपाउंड्स आर ऑलमोस्ट डन। ओके, तो हमारे पास कंपाउंड है फ्रेश, वो क्वेश्चन है, फ्रेशियम इज अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट इन Kurupana product table. The table shows some information about the two isotopes of freshum and two isotopes of ये freshum हमें information दे दी है, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर, देखो मैंने बहुत मरतबा कहा है कि अगर एलिमेंट हो ना, यानी एक ही आइसोटोप है, यानी डिफरेंट आइसोटोप है लेकिन एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन 87 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 87 होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आइंस में चेंज होते हैं। इसके बाद वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 136, और उसका जो आइसोटोप है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 138 है, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से सेम रहेंगे, फर्क क्या होगा, जो मैं इसका ये बनाऊंगा ना फ्रेशियम का, तो मैं 223 के बदले 225 कर दूंगा, और नीचे वही 87 रहेगा, क्योंकि ये जो वो मास नंबर है ये चेंज होता है ना, जो मास नंबर है ना ये चेंज होता है, मास नंबर 223 से 225 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं ना यहाँ पर। न्यूट्रॉन्स कितने थे मेरे पास, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स है 138, और इससे पहले कितने थे, कितने से 138 हुए हैं, 136 से, तो +2 का एडिशन हुआ है इन न्यूट्रॉन, वो फिर हम यहाँ पे वो मास नंबर पे ऐड कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, फ्रेशियम ऑक्साइड Fr2O कंटेन्स F+ एंड ऑक्सीजन 2- ना, यहाँ पे वो माइनस जो है वो मिसप्रिंट हो गया है, 2 वो माइनस है, क्यों कर गया। डिस्क्राइब हाउ द फ्रेंशियम आयन and oxide ion are formed from the francium atom
एंड ऑक्सीजन एटम। उसी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ खास तो डिफरेंस करना नहीं है। टू टू एफ आर will lose one electron each to become Fr plus one oxygen will gain two electron each to become O minus two. सही। फिजिकल ये प्रॉपर्टी से पहले हम बहुत सारी करते हैं।